سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پورا سچ میں آج ایک اور انکشاف کرنے جا رہی ہوں۔ یہ انکشاف بارہا ہم نے اپنے پروگرام میں کیا، لیکن کیونکہ اس پر ابھی تک کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس پر ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی، اسی لیے مجھے پھر دوبارہ پروگرامز کرنے پڑتے ہیں ایک ہی ٹاپک پر کہ جب تک کسی ایک چیز کو آپ صحیح نہ کر لیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور شہر میں، کیونکہ ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں، یہ آپ آن ایئر جو پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا لاہور اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد جو بھی باضابطگیاں ہو رہی ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں، کوئی محکموں کے معاملات ہیں، ان کو صحیح کرنے میں معاونت کی جائے اور اس کو صحیح کرنے میں انتظامیہ کو بارہا جو ہے وہ یہ چیز دکھائی جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بات کروں گی یہاں پہ نشے کے مریضوں کی۔ میں مریض ان کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ مریض ہی ہیں۔ نشہ ایک ایسی لت ہے، لگ جائے تو چھٹتی نہیں۔ کسی کو پیسے کا نشہ، کسی کو دولت، کسی کو شہرت، کسی کو کسی چیز کا نشہ، لیکن میں جس نشے کی بات کر رہی ہوں وہ ہے چرس، افیوم، آئس، یہ والے نشے۔ یہ جو نشے ہیں انہوں نے ہماری جڑوں کو، ہماری آنے والی نئی نسلوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہماری نئی نسل نشے کا شکار ہو چکی ہے۔ اس وقت کالجز، یونیورسٹی میں سرے عام نشہ فروخت ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پر کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی، لیکن کوئی جو کہتے ہیں نا کہ پراپر اس کا کوئی انتظام کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، اس مافیا کے خلاف جو ہے وہ مکمل طور پہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں۔ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری نئی نسل کو نشے کی لت میں ملوث کر رہے ہیں؟ جیسے ایک دور آئے گا، ایسا انکشاف جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو آپ کو اکارڈنگ ٹو اسلام بھی، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹریٹ بھی، ہر چیز جو ہے وہ بتا رہا ہوگا۔ اب ہر گھر میں ایک شخص ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے۔ پاکستان کے میجورٹی آف جو لوگ ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ نشہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ چرس کا نشہ ہو، وہ سگریٹ کا نشہ ہو، وہ فیم کا نشہ ہو، وہ آئس کا نشہ ہو۔ آئس اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ نشہ عام ہو چکا ہے۔ ینگسٹرز اور خاص طور پر جو لیڈ کلاس ہے اس میں یہ نشہ جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس نے ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ آئس کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ نشہ کوئی بھی ہو، انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکھ درد تکلیف اور دماغ جب معاف ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی دنیا میں ہے، وہ اپنے اندر ہی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے اس نشے کو لے کر جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کرتے ہیں، خلاف کارروائی بھی کیا کریں گے، وہ مریض ہیں، ان کے لیے کوئی سینٹرز بنانے چاہیے، کوئی ریہیب سینٹرز پہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک ریہیب سینٹرز پہ کام نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جو تیار کی ہے محمد شہزاد نے۔ آئیے ناظرین، کہتے ہیں نشہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں جگہ جگہ تقریباً ہر قصبے، ہر شہر میں نشہ کرنے والے اب تو عام نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کوئی وقت تھا جب ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے ان کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہو چکی ہے۔ صرف صوبائی دارالحکومت لاہور کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اینٹی نارکوٹکس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں کے نیچے کھلے عام یہ نشہ کرنے والے ان اداروں کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو ان کے علاج کے لیے صحیح معنوں میں سرگرم عمل ہو؟ یہاں بندوق کی نوک پر پولیو کے قطرے تو پلائے جا سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی حکومت کو کبھی اس بات کا خیال تک نہیں آیا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس میں ان کا علاج بھی ممکن ہو سکے۔ کیا یہ کسی کے لال نہیں؟ اس نشے نے کتنے ہی گھر اجاڑ دیے ہیں، نہ جانے یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، اس نشے نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنی ہستی بستی جو ہے وہ زندگیاں اجاڑ دیں۔ کہیں کوئی بیوی جو ہے وہ اس آس پہ بیٹھی ہے کہ میرے شوہر کا کہیں سے علاج ہو جائے، کہیں کوئی بھائی جو ہے وہ اس آس میں ہے کہ میری بہن کا کہیں سے علاج ہو جائے۔ ایون ہمارے یہاں خواتین نشے پر نشہ کر رہی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہتی ہیں، جس میں پڑھی لکھی بچیاں، اچھے گھرانوں کی بچیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، نشہ کر رہی ہیں، اور ان کے گھر والے جو ہے وہ عزت کو رکھ کے بیٹھے ہیں، بتا نہیں سکتے لوگوں کو کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ نشہ کر کے جو ہے وہ یہ خواتین کس طرح ان کے خاندان کا نام جو ہے وہ بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ لیکن
कोई पूछने वाला नहीं है। ये नशा इन बच्चों को लगता कहाँ से है? हमारी यंग जनरेशन जिस तरह बर्बाद हो रही है, 15 साल से लेके और 27 साल तक के जो लोग हैं वो नशे में मुलविस हैं। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो रीढ़ की हड्डी है, अगर उसमें से 10% लोग जो हैं वो नशे का शिकार हो जाएंगे और सड़कों पे पड़े होंगे बेयारो मददगार और अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे, सिसक रहे होंगे, क्योंकि नशा करने वाला जो शख्स होता है ना, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि उसको भूख बहुत लगती है, वो खाना बहुत ज़्यादा मांगता है। ये नशा करने वाले मरीज सड़कों पर मरते इस वजह से हैं कि इनको खाना सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि इनका मैदा खुल जाता है, इनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है, एनर्जी होती है। अमीर आदमी जब नशा करता है तो वो क्यों सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि उसका फूड, उसकी हेल्थ को जो है वो मेंटेन करने के लिए वो खाना खाता है। लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर नशे पर लग जाए तो क्योंकि उसको वो खुराक नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यही हो रहा है हमारे यहाँ और यही हो रहा है हमारी सड़कों पे कि आए दिन जो है वो कभी किसी लड़की की, कभी किसी लड़के की लाश जो है वो कभी किसी जो है वो नहर किनारे मिलती है, तो कभी कहीं जो है सड़क पे पड़ी मिलती है। ये वही नशा करने वाले बच्चे और बच्चियां हैं जो अपने घरों से बाहर हैं, क्योंकि जब ये घरों में जाते हैं तो ये तोड़ फोड़ करते हैं, तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर वाले भी इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हुकूमत क्यों कोई इंतजाम नहीं करती? इनके लिए रिहैब सेंटर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं बनाए जाते? आखिर इनको कौन देखेगा? अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो इनका कौन सोचेगा? खुदा के लिए जो हमारे मुल्क के मेमार हैं, जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, उनको बचा लीजिए, उनका इलाज कीजिए, उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लेकर आइए, रिहैब सेंटर्स बनाइए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद शहजाद साहब। क्योंकि ये मेरा डोमेन तो नहीं है एज हमारे नफ्सियात, लेकिन क्योंकि नशे के जो मरीज होते हैं जब वो रिकवर हो जाते हैं तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आते रहते हैं जो नशा करते थे, लेकिन नशा छोड़ने के बाद जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए जो है वो हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल ये क्योंकि अलग जो है वो इसको डील करते हैं डॉक्टर्स, इसका पूरा एक प्रॉपर जो है वो थ्योरी है, इस साइंटिफिकली इसको डील किया जाता है नशे के मरीजों को, लेकिन यहाँ नहीं किया जाता। प्रॉब्लम ये है। शहजाद साहब बताइएगा, इस वक्त जो है वो अगर आप दाता दरबार चले जाएं, आप घड़ी चौक देख लें, आप माल रोड देख लें, आप जो है वो हाल रोड देख लें, नशे के मरीज सरेआम सड़कों पे बैठे सरिंजे लगा रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, अफ्यूम पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, सिगरेटें लोग जो है वो आम दुकानों पे इधर उधर जो है वो पीते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब क्या हो रहा है हमारे माशरे में? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, कहते हैं कि नशा जो है वो नस्लें तबाह कर देता है। अगर दुनिया भर की हम बात करें तो दुनिया में इसके मतलब बड़े बड़े सख्त कानून मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी इसके मतलब बहुत ही सख्त कानून हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कभी कभी होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। ठीक है, अदारे भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स का अदारा मौजूद है और कानून नाफज करने वाले अदारे भी मौजूद हैं। लेकिन ये देखें, इन सब अदारों की नाक के बिल्कुल नीचे अगर आप लाहौर शहर की बात कर लें तो लाहौर का कोई गली, कोई मोहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं है। अगर आप लाहौर के किनाल रोड की बात कर लें तो आपको जगह जगह इनके बसेरे नजर आएंगे, जगह जगह नशा बेचने वाले और नशा करने वालों के डेरे आपको आम नजर आते हैं, दुनिया देखती है। और अगर आप ये ऑरेंज लाइन का ट्रैक देख लें, अगर आप जो लाहौर के बीचों बीच गुजरता है, तो ये तो ऐसे लगता है कि ये ट्रैक बनाया ही नशइयों के लिए गया है। जितने भी नशइयों के जो टोले हैं इस ट्रैक के नीचे बैठे होते हैं जगह जगह और सरे आम नशा करने में मसरूफ होते हैं। अदारे भी, अदारों के लोगों को भी पता होता है कि यहाँ नशा हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये नशा बिक रहा है, यहाँ पर इंजेक्शन लग रहे हैं, यहाँ पर हीरोइन बिक रही है, यहाँ पर आइस का नशा हो रहा है। लेकिन देखें कि हमारे अदारे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बिल्कुल कासर है। कभी भी हमारी हुकूमतों की ये प्रायोरिटी नहीं रही, कभी ये चीज़ें उनकी तरजीहात में शामिल नहीं रही कि इन लोगों के लिए भी, ये भी किसी के माँ बाप के लाल हैं, ये भी किसी के लखते जिगर हैं, इनके लिए भी कोई ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां इनकी रिकवरी हो सके। हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल है, अगर लाहौर की बात करें, जो बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल के हॉस्पिटल हैं, म्यू हॉस्पिटल हो गया, जो सर्विसेज हो गया, जनरल हो गया, वहाँ पर एक मेडिकल की वार्ड मौजूद है। ठीक है, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। ये डॉक्टर साहब मेडिकल की ज़ुबान में ये इनको साइकेट्री के पेशेंट कहते हैं। साइकेट्री के जो डॉक्टर होते हैं वो इनको डील करते हैं, इनका इलाज करते हैं। जो नशे के आदी जो मरीज वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जो या इलाज करवाना चाहते हैं, वो रिकवर भी हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक भी हो जाते हैं और आम तौर पर माशरे में आ भी जाते हैं, बड़े अच्छे शहरी बन के वो अपनी ज़िंदगी बाकी बसर भी करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ
وہاں تک رسائی بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہے. ہم عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک فرد ہیروئن پہ لگ گیا ہے تو اس کو آپ بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب کوئی نشے پر لگ جاتا ہے, وہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو, اس کو ہٹانے کے لیے یہاں بارہا کوششیں کی جاتی ہیں. ریہاب سینٹر میں جو پرائیویٹلی بنائے ہیں لوگوں نے اپنے طور پر جو چل رہے ہیں, جس میں بہت لاکھوں روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. 3 مہینے کا جو ہے وہ یہ علاج ہوتا ہے, اور اس میں 3.5 یا 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرایا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پر منتھ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ چارج کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, غریب آدمی کا بچہ اگر کسی نشے پہ لگ گیا ہے, وہ کہاں سے لاکھوں روپیہ لا کر جو ہے وہ اس کا علاج کروائیں گے؟ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات ہے. یہ اگر سرکاری ہاسپٹل کی بات کریں, سرکاریوں میں تو مطلب رکھتے ہی نہیں نا. سرکاری میں سائیکیٹری کی وارڈ ہے, وہاں پر وہاں پر رسائی ذرا کم نہیں ہے, وہ کم لوگوں کی رسائی ہے وہاں تک, ٹھیک ہے, لوگوں میں اویئرنس بھی کم ہے اس کے. اگر آپ کے دیکھیں نا, سب سے بڑا المیہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ہوتے ہیں جہاں ان کا باقاعدہ طور پہ علاج ہوتا ہے. لیکن دیکھیں نا, وہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی, وہ چیزیں بنی ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا کہ جو ان لوگوں کو ریسکیو کرے اور ان لوگوں میں جہاں ان کا وہاں رکھا جائے جہاں ان کا علاج ممکن ہو سکے. یہ سائیکیٹری کی وارڈز ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ ہاسپٹلز میں, جہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف راغب ہو جاتے ہیں نشے کی طرف, ٹھیک ہے. وہ ہمارے جو جتنے بھی جو ہاسپٹل ہیں, جو انسٹیٹیوشن لیول کے ہیں, بڑے ہاسپٹل جو ہیں لاہور کے, وہاں پر یہ وارڈیں موجود ہیں, وہاں پر فری علاج بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, وہاں پر لے کے کوئی نہیں جاتا ان کو. جہاں فیملی کا, اگر فیملی کا ایک بندہ ہیروئن پہ لگ گیا ہے تو سب لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جا کے باہر سڑک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بھائی بھی اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں, اور جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار اس کا علاج ممکن ہے, اس کو ہم کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیں, کسی انسٹیٹیوٹ کی سائیکیٹری کے وارڈ میں اس کو داخل کرا دیں, کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. ہم اس کے ساتھ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں, آج کل کے دنوں میں اگر آپ دیکھیں, یہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں, اسی لیے تو میں ان کو مریض کہتی ہوں, یہ مریض ہیں, یہ بالکل مریض ہے یہ. اور اگر آج سے ہم کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ان کی تعداد اتنی نظر نہیں تھی آتی. آپ کو ان کی موجودگی سڑکوں کے اوپر نظر نہیں آتی تھی. اگر کوئی نشہ ہیروئن کا نشہ کرتا تھا تو کہیں چھپ چھپ کے کر لیتا تھا. شہزاد صاحب, یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ نشہ کرتے ہیں, اور یہ نشہ کر کے اس وقت سڑکوں پر جو ہے وہ پڑے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وجوہات کیا ہیں جس کی بنا پر ایک جو ینگسٹر ہے, جو ایک ینگ بلڈ ہے, وہ اس نشے کی طرف آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, یہ بات یہاں شروع ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کی فوٹیج بھی چل رہی ہوں گی ٹی وی کے اوپر, یہ دیکھیں کہ یہ انجیکشن لگا رہے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ یہ ڈرگ انسپیکٹر کی ڈومین میں آتا ہے. جو اس علاقے کا جو ڈرگ انسپیکٹر ہے, اس کو یہ سب پتا ہے کہ نشہ آور میڈیسن کہاں سے بک رہی ہے, کون سا میڈیکل سٹور یہ نشیوں کے انجیکشن بیچ رہا ہے, کون سا میڈیکل سٹور نشہ آور دوائیاں بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ایس ایچ او کو پتا ہے کہ میرے علاقے میں کہ کہاں کہاں ہیروئن فروخت ہو رہی ہے, کہاں کہاں نشہ آور چیزیں فروخت ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایسا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں کہاں ہیروئن فروخت ہو رہی ہے اور یہاں کہاں نشہ کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہلیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے, ٹھیک ہے. اور یہی صاحب جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر کے بھی ساتھ ہے, ان سب کی آنکھوں کے نیچے. لیکن معاملہ خراب ہوتا ہے جب ان کے اپنے معاملات سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. جب ان کے اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کے خلاف کاروائی کرنے سے قاصر ہے, کیونکہ یہ کچھ چھوٹے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں جو نشہ بیچنے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بہت زیادہ کمائی ہے اس میں, پیسہ بہت زیادہ ہے, پروفٹ آف مارجن جو ہے اس نشہ بیچنے میں وہ بہت زیادہ ہے. اگر ایک بندہ 2 چکر لگا لے کہیں سے ہیروئن کے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چمک جو ہے پیسے کی, یہ نہ تو ان کے خلاف کاروائی کرنے دیتی ہے, نہ ان کے خلاف کوئی قانون حرکت میں آتا ہے. یہ سب چیزیں, پیسہ جو ہے ان کو اپنی آڑ میں لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے سے آج تک قاصر ہے. بڑی معنوں میں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی جس لیول پہ ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے
हमारी, आपको पता ही है, देखे हर चीज का पता होते हुए भी। अच्छा, जिस मुल्क में बुनियादी सहूलत से ही महरूम कर दिया गया हो एक आम आदमी को, एक आम शहरी को, वहाँ पर नशे के मरीजों की जो है वो देखभाल किसने करनी है? वहाँ पर नशे के मरीजों के लिए जो है वो रिहैब सेंटर्स बनाना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। हमारा काम तो निशानदेही काम करेगा डॉक्टर साहब, हमारा काम तो निशानदेही करना है, हमारा काम है आवाज उठाना। ये निशानदेही हम बारहा कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, हम आइंदा भी करेंगे। ठीक है, ये हुकूमतों की ये भी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। देखें आज अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर आप कॉलेजेस की बात करें, तो ये अगर आपने अपने आने वाली नस्लों को महफूज करना है, अपने आने वाली नस्लों को इस नशे की लानत से बचाना है, तो आपको इसके खिलाफ इनके लिए कोई मौसर कदम उठाना पड़ेगा, कोई लॉ ऐसा बनाना पड़ेगा इन अदारों में। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी पाक हो जाए इस नशे की लानत से, तो आपको इनके खिलाफ कोई अच्छा कानून बनाना पड़ेगा, इनके खिलाफ को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वरना आप देखें कि अब तबाही सिर्फ हिस्से में आएगी, तबाही सिर्फ मुकद्दर में आएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। हुकूमतें आती हैं, देखें पुल बनते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रैक बनते हैं, मेट्रो बनती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी होने चाहिए। लेकिन ये चीजें भी होनी चाहिए, इनके लिए ऐसे सेंटर होने चाहिए जहां इनकी रिकवरी मुमकिन हो आप सके। यकीन करें, ऐसे वो लोग सड़कों पे पड़े हैं, ना खाने की होश, ना पीने की होश, ना जिंदगी की होश, ना पहनने की होश, और किस तरह जो है वो सदियों का जैसे कोई उजड़ा हुआ शख्स जो है वो सड़क के ऊपर पड़ा, और ऐसे कोई उठाने वाला नहीं है। पुलिस वहीं से गुजर रही है, इंतजामिया वहीं से गुजर रही है, बड़े लोग वहीं से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है, और सब जो है वो तमाशा देखते हुए जो है वो गुजर जाते हैं। लेकिन कोई रुक कर जो है वो ये जहमत नहीं करता कि अगर कोई सड़क पर बैठा है बीबी या कोई मर्द जो है वो बैठा है या बच्चे बैठे हैं, तो भाई रुक के उनको पूछ लिया जाए कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं, और ये यहाँ पर अगर बैठे हैं तो इनके मसाइल क्या हैं, और अगर उनके मसाइल आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट रुक के आप पूछ तो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ किसी चीज पे काम ही नहीं हो रहा। बात ये आगे इस पे क्या काम होगा? डॉक्टर साहब, बात ये है कि एसएचओ का जब राउंड होता है, अगर उसको बड़ी मजबूरी पड़ जाए कि उसको पता चल जाए कि बड़ा उसके एरिया में बड़ा गंद मच गया, तो फिर उस एक मामूली सी बस दिखावे का एक राउंड लग जाता है मुतलका एसएचओ का। ठीक है, वो जहां जहां से राउंड लगता है वहां से ही उठ जाते हैं वक्ती तौर पर। सही बात है। उनकी भी मजबूरी है। अगर आप एसएचओ की पुलिस महकमा पुलिस की बात करें तो उनकी भी मजबूरी है, वो इनको लाकर कहाँ रखें, थाने में जगह नहीं होती। ठीक है, अगर इनके ये देखें, ये वो इनका वो साहब है, वो जिंदा हाथी लाख का, वो मरा हुआ 1.5 लाख का। ठीक है, अगर इनको कोई मसला बन जाए, इनको नशई को अगर वो उठा के ले आए, थाने में ले आए, तो उनको अपने लाले पड़ जाते हैं एसएचओ को। उनके पास कोई जगह नहीं है, ये इनको लेके वो कहाँ रखें, कोई ऐसे सेंटर मौजूद नहीं है। हमारी हुकूमतों ने इस टॉपिक के ऊपर कभी भी काम नहीं किया, इसकी तरफ कभी भी तवज्जो ही नहीं दी कि इनके लिए भी कोई ऐसा जगह बनानी चाहिए जहां इनको ला के रखा जाए। ये कोई इतना लंबा चौड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, ये इतना खर्चे वाला काम नहीं है। देखिए, अगर आप कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसको आपने बड़े ऑपरेशन थिएटर को दूसरी चीज़ों के साथ उसको बड़ा फैसिलिटेट करना होता है, लेकिन इनके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है। इनको लेके आपने रखना, जिस तरह पागल खाने के हॉस्पिटल नहीं होते, पागल खाना हॉस्पिटल, इसी तरह के आपने इनके लिए सेंटर्स बनाने हैं। अच्छा, जहाँ जो है वो मेंटल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक रिहैब सेंटर बनाया जी बिल्कुल है, लेकिन वो सिर्फ मर्दों के लिए बनाया गया, वहाँ खवातीन को रखने की इजाज़त नहीं है। और आज जो हम देखते हैं सड़कों पे, जिस तरह हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो नशे की लत में इस टाइम मुलव्विस हो चुकी हैं, इस टाइम सड़कों पे बैठी हैं और अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पर लगा चुकी हैं। उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जिन्हें हम सुकून से किसी एक छत के नीचे उनका इलाज भी हो और इज़्ज़त से वो वहाँ पर ढक छुप कर जो है वो रह भी सकें। ये बहुत बेहयाई और बेशर्मी जो है जो हमारे माशरे में फैलती जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर आप दरबार शरीफ पे चले जाएं, दाता दरबार चले जाएं लाहौर, तो आप वहाँ देखिए कि वहाँ ख़वातीन किस तरह बैठी हैं और किस तरह सरेआम वहाँ पर जो है वो ये नशे आवर जो चीज़ें हैं वो फरोख्त की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, ये हर दरबार का ये 50-100 रुपए में आपको इजीली जो है वो ये नशा करने की चीज़ जो है वहाँ से मिल जाती है और आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगे। ये बड़ी आसानी से, जी बिल्कुल, देखें बड़ी आसानी से ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। दाता साहब के बाहर चले जाएं, माधोलाल सैन दरबार है, उसकी बाहर चले जाएं, दूसरे जो बड़े दरबार है, ठीक है, ये लाहौर ही नहीं, लाहौर के अंदर बाहर भी चले जाएं। जो आलिया के जो एक तकद्दुस है उसका एहतराम नहीं कर पा रहे, क्यों हमारी इंतजामिया जो है वो ये गफलत बरत रही है। अच्छा, पकड़ते हैं इनको,
इनको मारते पीटते हैं और फिर थाने ले जाते हैं, फिर इनको बंद कर देते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं। असल में डॉक्टर साहब ये हाल है। इसमें बड़ी एक तादाद जो है ना वो बकारियों की होती है, ठीक है, जो बकारी हैं, गदागर हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद इनमें शामिल है, नशा करने वालों जाहिर है वो भी नशा कर रहे हैं। असल में ये दरबारों के आगे इनके इसलिए डेरे होते हैं कि वहीं से ये मांगते हैं, वहीं से ये भीख मांगते हैं और वहीं फिर नशा करते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। वहीं से खाना भी इनको फ्री मिल जाता है, वो कोई नजर न्याज का, और वहीं से इनको नशा भी मिल जाता है, वहीं से पैसे भी मिल जाते हैं। इसलिए इनके डेरे जो हैं वो दरबारों के आगे बन जाते हैं, उन जगहों पर जहां पर इन्होंने मांगना होता है और जहां पर वहां उन्होंने पढ़ के सो रहना होता है, वो जगह जो है इनकी पसंदीदा जगह बन जाती है। लेकिन ये देखें, हमारे बहुत दफ़ा इनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं होते कि इनका मुकम्मल सफाया किया जा सके। इनको जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ा जा सके, उनको पकड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वो छूट के आ जाते हैं, फिर वही धंधा वहीं से शुरू हो जाता है और फिर उसके साथ वो टैक्स भी लग जाता है, ठीक है। जो उन्होंने पैसे लगा के वो बाहर आए होते हैं या उन्होंने कोर्ट कचहरी की जो फीसें दी होती हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं, वो टैक्स भी शामिल हो जाता है। और देखें, अगर एक एसएचओ ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद वो बंदा आ गया और दोबारा फिर जाके वही धंधा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी एसएचओ के साथ सेटलमेंट हो गई है और उसको बकायदा लाइसेंस मिल गया है कि अब आप ये काम करो और अब आपका कोई पूछने वाला नहीं है। ये डरते इसीलिए नहीं है ना। देखिए, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी हमारे मुआशरे से, हमारे अफसरों से, हमारे महकमों से, ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, ठीक है, ये बेज़ाब्तगियां जो हैं ये खत्म नहीं होंगी, कभी भी इनके खिलाफ को मौसर कार्रवाई नहीं होगी। और ये हमारी नस्लें इसी तरह इनके दाव और रहमो करम पर रहेंगी, आने वाली नस्लें, अगर जब तक इनके खिलाफ को मौसर कार्रवाई ना हो सकी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं नशे के मरीजों की, उन लोगों की जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि कोई रिहैब सेंटर्स बने, कोई मुफ्त इलाज जो है वो इनका किया जा सके, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में, अब जो पिछली हुकूमत थी जिसमें जो है वो हमारे पास चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो सीएम थे, उनसे मेरी 30 पे बात भी हुई, मेरी मीटिंग भी हुई कि हम रिहैब सेंटर्स जो हैं वो बनाने चाहिए हमें और इस पर जो है वो काम करें। नशे के जितने मरीज़ हैं उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर। तो उन्होंने इस चीज़ की हामी भी भरी थी कि हाँ इसको हम जो है वो करेंगे, लेकिन फिर ज़ाहिरी बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और ये सारी सूरत हाल होगी। अभी भी ये काम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारे सीएम साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एक बहुत बड़ा काम है, जिसने भी कर दिया उसका नाम जो है वो 7 नस्लें याद रखेंगी, यकीन करें। अगर देखें, अगर ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर लैदा सी बिल्डिंग बेशक ना भी बनाएं, ये बड़ी एमरजेंसी हालत में भी ये जल्दी भी ये काम हो सकता है, इसकी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू हॉस्पिटल देखें, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें साइकेट्री की वार्ड का एक पूरा फ्लोर जो है वो कायम है। अगर आप उसी को ऑपरेशनल कर दें, उसी को एक्टिव कर दें, तो वो इतनी जगह है कि वहां पर तकरीबन 200-250 बंदे का इलाज मुमकिन है। इसी तरह की वार्ड सरसीज़ो हॉस्पिटल में भी हैं, जर्नल में भी हैं, जनाब में भी हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं वार्ड्स को अच्छे तरीके के साथ मैनेज करके इनको ऑपरेशनल कर दें, इनको एक्टिव कर दें, ताकि और कोई ऐसा अदारा बनाए जो ऐसे लोगों की ये ड्यूटी लगा दें कि जो इनको रेस्क्यू करके वहां तक पहुंचाएं, ताकि इनका इलाज मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब, ये देखें, लॉकडाउन के दरमियान एसएचओ को हर पता होता है कि फलां दुकान खुली है, मैंने बंद करवानी है, बंदूक की नोक के ऊपर पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखें, इनके खिलाफ भी मौसर कार्रवाई भी हो सकती है और इनको रेस्क्यू भी किया जा सकता है नशेइयों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये है, इस वक्त सूरत हाल, हम सूरत हाल से गुजर रहे हैं और जिस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं, बात जो है वो किसी ऐसी चीज़ की नहीं है कि हमने जो है वो यहाँ पर किसी को डराना है, धमकाना है, फिर ही काम करना है। बात इतनी सी है कि इस्लाह करनी है, और इस्लाह ये है कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो वो इस पाकिस्तान की बिगड़ती हुई नई नस्ल के लिए ये किया जा सकता है कि नशे के जो मरीज़ हैं, जो इस वक्त नशे में हमारी यंग जनरेशन है, उसका इलाज मुमकिन बनाया जा सके। और इसके लिए रिहैब सेंटर्स की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से जो आवाज़ जो है वो आगे जाएगी। और दूसरी बात ये कि बाकायदा तौर पे देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं ना बंदूक की नोक पर जो है ये काम करवा लेते हैं, तो बंदूक जो है ना वो उनको दी जाती है हिफाजत के लिए, वो मुहाफिज हैं हमारे, तो उनकी ये हिफाजत जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो है वो कोई धौंस या धमकी से जो है वो काम करवाना है, प्यार मोहब्बत से जो है वो काम किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको दी जाती है, उसको हम ऐसे जो है वो प्रोग्राम में डिस्कस भी नहीं कर सकते। बहरहाल जी, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पर ज्वाइन करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।